Okay, so Assalamu alaikum and welcome to today's class of electronic fundamentals. And I hope my voice is clear. If there's any problem in hearing my voice, you can just raise your hand and tell me if you are not able to hear me. And it's good that Sheikh Saif is present with us, and I'm not yet sure whether the other students are actually attending or not. So it's good more and more people are turning on their cameras and showing signs of humanity and proving that there is still some humanity left on earth. Because here in this lonely room, it's very difficult for me to realize that there's actually there are actually people around me. So it's good. I'm still waiting for Ahmed Nabil, Akam, Bilal Hussain, Usman, Taha. Good. All right. So up till now, we are pretty much through the main chunk of the course on electronic fundamentals, and I believe much of the course that pertains to the questions that will appear on your EASA exam has been covered. That's because on your exam you would mostly see questions. 70% of the questions would be related to the topics that we have covered, including operational amplifiers, diodes, transistors, integrated circuits, and so on and so forth, up till now. So these last few topics, although they're important, but as far as your EASA exam is concerned, the initial topics that we have covered are actually very important. But not to say that these topics are not important. By the time we end this course, I'll show you a quick summary of the courses of the questions that are set on the EASA exam and the weightages or the amount of questions dedicated to each section of the module 4. And I expect you all to be able to say that the syllabus that we have covered up to this point has been a good experience and you've learned enough during this course. Enough to pass your EASA module 4 exam. So these are some of the last lectures that we're going to do, obviously, on module 4. So I would start by again asking you if there's anything that you would like to know, any question, any problem that you'd like to ask from the previous chapters. So this is the last chapter that we're doing for EASA module 4. If there's any question that you would like to ask, if there's any confusion that you have, please go ahead. And along with that, I would like to tell you that next week on Tuesday, we are going to have a short quiz on the topics that you like. Obviously, like means they have to be within the module syllabus. So, where did I write? All right, yes. So,
next week on Thursday, that is what date is it? On 3rd of June, we are going to have a short quiz, which is going to be, आपके कितने quizzes हो चुके हैं पहले? एक क्विज हुआ है, ठीक है, 2 से 3 और क्विजेज होने हैं, और इस वीक आपको एक असाइनमेंट भी देनी है। एक एक्टिविटी मैंने आपको कर दी है ऑलरेडी, जो कि आपने एक वीक पिछले वीक में अपलोड हुई थी। इस वीक की भी टाइम है, इट्स अवेलेबल ऑन द एलएमएस, प्लीज गो थ्रू इट एंड प्लीज सबमिट इट इन योर ओन टाइम। एंड it is good to see that most of you are smiling and happy about so many assessments that you are getting. So I have a good news for you that you'll have one more quiz next week on Thursday, right? So this will be quiz 2. तो इसमें कोर्स कंटेंट होगा, वो कोर्स कंटेंट जो मुझे आप बताएंगे, ऑब्वियसली मैं वो तो नहीं मानूंगा पूरा पूरा, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत शायद आपकी बात मान ली जाएगी। तो यस, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये कहाँ तक सिलेबस होगा इसका? यस, सिलेबस आपका जो मिड टर्म था दैट वाज टिल आई गेस ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स तक था। इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजीज स्टार्ट किए थे हमने। Your midterm was till operational amplifiers. In fact, before operational amplifiers, right? In operational amplifiers से पहले हमने सिलेबस आपका midterm का रखा था। तो इसमें आपका जो पेज 65 है, which is the start of integrated circuits, वहां से लेकर you have to prepare till what point? All right, keep it to Schmidt trigger. In fact, ये जो पेज 89 है, फ्रॉम पेज 65 till 89 आप क्विज अपना एक्सपेक्ट करें, ठीक है? ऐसा भी किया जा सकता है कि इस क्विज को मैं 2 क्विजेस में स्प्लिट कर दूं, तो ये चूंकि बिकॉज इट्स अ बिग सिलेबस बट इट्स वन टॉपिक, like it's not a big syllabus, it's only 20 pages, but the point is that because there is mainly one topic that we're dealing with, I might split it into 2 quizzes, right? So you just have to prepare from page 65 till 89, which is the start of integrated circuits, the discussion on operation amplifiers, and then the last topic, which is Schmidt trigger, right? So I would probably split it into 2 quizzes, which you'll have to do on the same day, but the syllabus would be this that I have already explained to you, right? So this is page 65 till 89. If you have any concerns related to it, if you want to say that this syllabus is too much, then you're not welcome to say that. But if you want to say that yes, this is a very nice syllabus, you are welcome to say that. Right. Thank you sir. जी? Thank you sir, thank you. Thank you. All right, any problems in the preparation of this syllabus? Will you be able to do it? Like you have 1 week now, more than 1 week to prepare it. So I think it won't be a big issue for you. कर लेंगे त्यार? Will you be able to prepare it within 1 week? All right, good. So let's move back to the discussion that we were doing last time, which was about servo mechanisms, and mainly what we talked about was 2 to 3 ways in which we need servo mechanisms. So before we started the discussion on servo mechanisms, I told you that there is an inherent desire in a human being or in humans to control things, right? So even as engineers or technologists, this desire has not reduced.
So we have more and more desire to control things. Like I have a desire to control the temperature of this room, or I have the desire to control the speed of the fan, let's say, that's installed in this room. Or let's say I have to control the amount of noise that occurs within this classroom, right? So there is an inherent desire, there is a desire to control things, right? So extend this to the discussion on, let's say, uh, to the position of a radar installed on an airbase or on an airfield, or let's say on an airport, right? So I would like to control the position of that radar in order to check, let's say 360 degrees or 180 degrees of surroundings, to see whether there is an enemy aircraft or there is any aircraft. Let's say if we are not talking about enemy or friend, but if there is any aircraft approaching the airport or the runway, right? तो मैं देखना चाहूंगा कि भी अगर एक एयरपोर्ट है तो उस एयरपोर्ट के पास अगर एक एयरक्राफ्ट लैंड करने वाला है तो उसको मैं देखने के लिए मुझे हो सकता है रडार की जरूरत पड़े, तो उस रडार की पोजीशन को देखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स, तो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स की मैंने बात की थी कि अगर मैं जहाज को मनूवर कराना चाहता हूँ तो आई वुड लाइक टू मैनिपुलेट दी flight control surfaces. तो आपने basic aerodynamics पढ़ी है, by this time you know that there are three primary control surfaces which are ailerons, rudders and elevators, right? And then there are secondary control surfaces including flaps, rudder waiters and so many other devices that you would see in the coming days. But let's just for now focus on the three primary control surfaces. Let's say मैं अगर एक जहाज को रोल करवाना चाहता हूँ तो मुझे एलरॉन्स की पोजीशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगेन कंट्रोल, अगर मैं उसको पिच डाउन या पिच अप करवाना चाहता हूँ मुझे एलिवेटर्स की पोजीशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, अगेन कंट्रोल। और इसी तरीके से अगर तीसरा एक्सेस जो मुझे उसको अगर यॉ करवाना है तो मुझे उसके रडर की पोजीशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, अगेन कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोल करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, ठीक है। और मैं भी इस मसले से दो चार हूँ कि मैं आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ लेकिन आप लोग कंट्रोल में आते नहीं है, आप अपनी मर्जी से क्लास में आते हैं जब आपका दिल करता है, वरना आप नहीं आते, ठीक है। तो मैं भी इस प्रॉब्लम पे आजकल सोच रहा हूँ कि किस तरह से मैं स्टूडेंट्स को पूरा कंट्रोल कर सकूँ, सारे के सारे क्लास में आए करें एट द टाइम ऑफ द क्लास। सो लाइक देयर आर ओनली 19 पीपल, ठीक है। फिर जब मैंने बात की तो मैंने क्या कहा कि मैं एक कंट्रोल सिस्टम को जब मैं किसी चीज को कंट्रोल करने की बात करता हूँ दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तरीका क्या है कि ये फिगर मैंने देखी कि एक आपके पास कंट्रोल सिस्टम है जिसको आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं और कंट्रोल करने के लिए आपने कोई वेरिएबल अटैच किया। तो अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूँ यहाँ पर तो ये कुछ इस तरह से है कि ये मेरा इनपुट है जो कि जिसको मैं कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ये इनपुट किस सिस्टम को जा रहा है, ये कंट्रोलर को जा रहा है, ठीक है। कंट्रोलर आगे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है और सिस्टम का जो आउटपुट है वो कुछ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। आई होप स्क्रीन पे सबको नजर आ रहा है, राइट। तो ये मेरा इनपुट है, इस इनपुट को मैं इस कंट्रोलर को दे रहा हूँ, ये कंट्रोलर इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है और आउटपुट मुझे दे रहा है। लेट्स से ये कंट्रोलर क्या हो सकता है, अब आप मिसालें सोचते जाएं, क्योंकि आपने फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स अभी नहीं पढ़ा तो मैं आपको मिसालें देना चाह रहा हूँ ताकि आपको कुछ इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो ये कंट्रोलर इनपुट क्या हो सकता है, ये एक रिमोट कंट्रोल हो सकता है, जो रिमोट कंट्रोल इस एसी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये रिमोट कंट्रोल है जो आपके आम यूज में जो रिमोट कंट्रोल होता है, उस कंट्रोलर से मैं इस एसी लेट से जो लगा हुआ है यहाँ पे इसका टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहता हूँ। अगर मैं इसका टेम्परेचर कंट्रोल करना चाह रहा हूँ तो सिस्टम क्या है, मेरा एसी है, ठीक है। और इस सिस्टम की जो चीज जिसको मैं कंट्रोल करना चाह रहा हूँ वो क्या है, आउटपुट है, ठीक है। तो ये आउटपुट क्या होगा, टेम्परेचर। यहाँ से मैंने कमांड क्या दी थी, टेम्परेचर। अब कमांड मेरी टेम्परेचर है लेकिन जो उसका कंट्रोलर को जो सिग्नल जाता है सिस्टम को, दैट्स इन द फॉर्म ऑफ अ सिग्नल। एक रिमोट का सिग्नल है, एक रिमोट जो मेरा कंट्रोलर है उससे सिग्नल जाता है सिस्टम को, और वो सिग्नल दरअसल टेम्परेचर नहीं बताता, वो सिग्नल एक टेम्परेचर बताता जरूर है लेकिन एग्जैक्टली जिस तरह 35 डिग्री या 40 डिग्री एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं है जो जा रही है, एक सिग्नल की फॉर्म में वो मैसेज जाता है उसको कि जी टेम्परेचर जो आपने मेंटेन करना है दैट्स 40 डिग्री, और लेट्स से 40 डिग्री इज बिग वैल्यू, और लेट्स से 20 डिग्री, राइट।
तो अब प्रॉब्लम क्या है कि मैंने इसको सिग्नल दे दिया, सिग्नल दे के मैंने चेक नहीं किया, मैंने लेट से सिग्नल दिया 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आउटपुट पे आया 22 डिग्री सेल्सियस। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट मैं इसको कुछ और कह रहा हूँ, वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। So there is an error that exists between the input and output values. मैंने जो उसको वैल्यू दी वो वैल्यू जो चीज उसको अचीव नहीं कर पाया। अब इस सिस्टम को मैं क्या कहता हूँ, ओपन लूप सिस्टम। दिस सिस्टम इज कॉल्ड ओपन लूप। That's because in an open loop system you don't know whether the output is exactly in line with the input. कोई ये लूप ओपन है, देखिए ये क्लोज नहीं हो रही, ओपन एक जगह से स्टार्ट होती है दूसरी जगह पे एंड हो जाती है, लेकिन ये इसका जो स्टार्ट और एंड है वो क्लोज नहीं होता, तो ये ओपन लूप है, खुली हुई लूप है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरे पास ये इनपुट और आउटपुट, मैंने इसको इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करना है, आपस में फीडबैक देना है, तो इसको मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, क्या सोल्यूशन क्या है इसका, कैसे मैं पता लगा सकता हूँ कि यार ये एरर कितना है और इस एरर को करेक्ट करने के लिए कंट्रोलर को सिग्नल जाए, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। We have already discussed this. What is that mechanism by which I can connect the input and output to see if the actual input that I have supplied is appearing on the output? Anji, anybody would like to answer? Anyone? जी तहा जी सर, सेंसर लगा देंगे एक जो रिएक्ट करेगा कि कितना चेंज आ रहा है। आउटपुट के ऊपर एक टेम्परेचर सेंसर लगा दूंगा और ये सेंसर क्या करेगा, ये सेंसर इस टेम्परेचर को रीड करेगा और इनपुट पे वापस जाके फीड कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक समिंग जंक्शन लगा दी। अब ये समिंग जंक्शन क्या कर रही है कि ये और इसको सब्ट्रैक्ट कर रही है आपस में, और सब्ट्रैक्ट होके अब आप देखेंगे आउटपुट से सेंसर की आई 22 डिग्री आया यहाँ पर, और यहाँ पे 20 और 22 डिग्री कैंसिल आउट होके एरर माइनस होके यहाँ पे एरर आ जाता है, ये जो हिस्सा है ये एरर है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, शायद ये इमेजिन करने में थोड़ा सा इशू आ रहा होगा कि यार ये 20 डिग्री था, ये 22 डिग्री था, ये सेंसर किस तरह से 22 डिग्री यहाँ पे आके ये ऐड किस तरह से हो सकता है। तो आप इसको देखें कि ये बेसिकली सेंसर क्या दे रहा है, सेंसर इस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग एक वोल्टेज दे रहा है, ठीक है। आपने जब टेम्परेचर से रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करने की कोशिश की उस टेम्परेचर को, तो व्हाट यू डिड वाज टू अप्लाई अ सिग्नल टू दी was to apply a signal remotely to the air conditioner, right? That's what you're doing. आप एक दूर डिस्टेंस से रिमोट पोजीशन से आप उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं। What is that electrical signal? A voltage, right? तो यही सेंसर जो काम कर रहा है, सेंसर क्या कर रहा है, सेंसर is basically providing a voltage corresponding to this 22 डिग्री सेल्सियस। ये जो 22 डिग्री सेल्सियस है इसके corresponding उसने एक वोल्टेज यहाँ पे दे दी, और ये जो इनपुट that you supplied was also in the form of a voltage. So what happens is that these are voltages being compared and the error in the voltage is being supplied to the controller, right? That's what actually happens, and this error indicates the difference in temperature between the output and the input. Even when you have supplied 20 degrees, if the output is 22 degrees, there is no way you can control it except by applying a closed loop system. So this is what we call as a closed loop system, because the system is now in a closed loop, right? Clear? समझ आती है इस बात? तो यहाँ पे जो क्लोज लूप ओपन लूप की डिस्कशन हमने की थी, हमने सर्वो मैकेनिज्म्स के अंदर जो कंट्रोल सिस्टम्स का यूज है वो देखा था, और इस तरह की और चीजें हमने डिस्कवर की थी, और उसका मकसद बुनियादी तौर पर यही था कि हम देख सकें कि आपके पास व्हाई डू वी नीड कंट्रोल सिस्टम्स, राइट? यहाँ तक क्वेश्चन कंफ्यूजन हो पिछली बार जो हमने डिस्कशन की? Any questions, confusions from the last time that we discussed up to this point? Any questions? So by now you must be able to understand what a servo mechanism is, what a control system is,
how can a control system be configured, how can we make a control system as an open loop system, how can we make a control system as a closed loop system, and similarly other concepts related to feedback control system. So you see, this is actually an output feedback being given to the input. जो ये क्या हो रहा है कि ये आउटपुट का फीडबैक जा रहा है इनपुट के ऊपर, और इस तरह से जो कंपेयर होती है, जो आउटपुट से इनपुट के दरमियान जो वैल्यूज कंपेयर होती है, उससे कंपेयर होने से आपके पास एक एरर सिग्नल जनरेट होता है। तो एरर सिग्नल आपकी करेक्शन करवाता है कंट्रोलर को। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से ये एक इट्स एक्चुअली गिविंग यू अ फीडबैक। सो इस क्लोज लूप सिस्टम को हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कह सकते हैं, राइट। अब इसी को लेट्स कैरी ऑन दिस डिस्कशन टू लेट्स से दिस पार्ट ऑफ द टॉपिक। एनी क्वेश्चंस? उस्मान, क्वेश्चन है? सर ये एरर वाली चीज रिपीट कर देंगे जरा। देखो, ये आपके पास आउटपुट था ना, आउटपुट और इनपुट में प्रॉब्लम है, ये दोनों मैच नहीं कर रहे। तो अब आप क्या करेंगे, इस आउटपुट को एक सेंसर से रीड किया आपने, सेंसर से रीड करके वापस इनपुट पे सप्लाई कर दिया। हुआ क्या कि ये इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स आपस में कंपेयर हुए, राइट। इनके कंपेयर होने से क्या हुआ कि लेट्स से ये इनपुट 20 डिग्री सेल्सियस की जो वोल्टेज आ रही थी 5 वोल्ट्स की, और ये 22 डिग्री सेल्सियस की जो वोल्टेज आ रही है 5.2 वोल्ट्स है। तो यहाँ पे दोनों आके सब्ट्रैक्ट हो गए, 5 - 5.2 गिव्स यू -0.2, ठीक है। तो ये एरर यहाँ पे जो सिग्नल गया, यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हुए इस समिंग जंक्शन के ऊपर। ये जो जंक्शन है, इसको हम कह रहे हैं कि ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इससे जो एरर था, दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस था, वो एरर की फॉर्म में कंट्रोलर को वापस गया। तो कंट्रोलर को कमांड क्या मिली कि भाई अभी इनपुट और आउटपुट मैच नहीं कर रहे, कुछ थोड़ी बहुत एरर एग्जिस्ट करती है, इसको करेक्ट करना है, राइट। मेक सेंस? क्लियर? ऑलराइट, so let's move on to the discussion on synchros. तो आप देखें सिंक्रो सिस्टम भी क्या करता है कि ये पोजीशन, लेट से आपने किसी चीज की कंट्रोल करनी है, तो उस पोजीशन को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है, राइट। सो लेट्स से जस्ट गिव मी अ मिनट। So let's say we are talking about this particular case. So इसमें if you look closely, so you see this is a servo motor that controls the position of this load. Let's say this is the position of a weight or any mass, right? कोई भी, या let's say ये कोई भी और चीज हो सकती है, किसी चीज की position को indicate कर रहा है। At first you see that this control transformer, this load and this synchro control transmitter are at 0 degrees. All of them are 0 degrees, right? तो ये जो सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसमीटर जो है, ये ट्रांसमीटर एक बेसिकली सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है कि इस लोड की पोजीशन को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो अब आप देखें इस ट्रांसमीटर की जो पोजीशन है दैट्स 90 डिग्रीज, इट्स नॉट 0 डिग्रीज। इसने लिखा जरूर 0 डिग्रीज हुआ है, लेकिन ये असल में 90 डिग्रीज है, राइट। तो ये 90 डिग्री होना चाहिए यहाँ पे, या इस सुई को 0 डिग्री पे होना चाहिए। तो हम सिंपल तरीके से चलते हैं कि हम कहते हैं कि ये भी 0 डिग्रीज पर ही था, ठीक है। So what happens is that synchro transmitter is controlling the position of this load, and this control transformer is relaying the information of this transmitter to the forward system, right? तो ये जो feedback है, इसे control transformer क्या काम कर रहा है, ये वही exactly काम कर रहा है कि transmitter और जो उसका जो output का जो response है उनको compare कर रहा है, ये जो transformer है, जिस तरह की हमने summing junction की बात की, ठीक है। तो पहले हमने कहा ये भी 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है। तो जब इन तीनों चीजों को हमने कह दिया कि 0 डिग्रीज हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए कि कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है। दैट मींस द सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म इज वर्किंग, कि आपके पास तीनों चीजें जो है वो सिंक्रोनाइज्ड तरीके से चल रही हैं, ठीक है। दैट्स द पर्पस ऑफ अ सिंक्रो। द वर्ड सिंक्रो सजेस्ट्स दैट इट ट्राइज टू सिंक्रोनाइज द पोजीशंस ऑफ द ट्रांसमीटर एंड द लोड, ठीक है। सिंक्रो मैकेनिज्म जो हम पढ़ रहे हैं, हम जो मैकेनिज्म, उसका वर्ड से आप अंदाजा कर सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन से वो सिंक्रो कह रहे हैं। अब देखें ये पहले 0 डिग्री था, अब 90 डिग्री पे आ गया। तो ये जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, ये 0 डिग्री पर था। अभी ये जो लोड है और जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, और यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है वो भी 0 डिग्री है,
for this time instant in which ये कह लेंगे वो टाइम इंस्टेंट है जिसके ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्रीज पर गया। तो पहले तो इस कंट्रोल ट्रांसफार्मर में सिग्नल क्या आ रहा है, 0 डिग्रीज का आ रहा है। तो 0 डिग्रीज और लोड भी 0 डिग्री पर है, तो ये कंपैरिजन इस सर्वो एम्पलीफायर में गया, सर्वो एम्पलीफायर से सर्वो मोटर में गया, और ये आपके पास एरर क्या आना था, 0 डिग्री। ये भी 0 डिग्री है, ये लोड भी 0 डिग्री है, दैट मींस द एरर इज 0 - 0 0 डिग्रीज। बट आफ्टर सम टाइम, or you can say after a small instant, you see that there is an error that exists between these two things, between the control transformer and the control transmitter. So what happens is that this control transformer tries to reduce this error and tries to move towards the position where the control transmitter is actually located, right? जो control transformer है ये उस पोजीशन में जाने की कोशिश करता है जिस पोजीशन में आपके पास control transmitter की पोजीशन थी, right? समझ आती है इस बात की? तो ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, ये जिस तरीके से इसकी 90 डिग्री को आने की कोशिश, अब ये देखें थोड़ी थोड़ी देर में ये 90 डिग्री पे आने की कोशिश कर रहा है। अब इसके इस कंट्रोल ट्रांसमीटर को फॉलो करने से क्या हुआ ये कि अब एक एरर जनरेट हो गया। देयर इज एन एरर दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन द लोड एंड द कंट्रोल ट्रांसफार्मर, बिकॉज द कंट्रोल ट्रांसफार्मर इज फॉलोइंग द पोजीशन ऑफ द कंट्रोल ट्रांसमीटर। कंट्रोल ट्रांसमीटर आपके हाथ में, आप समझ लें वो आपकी जो इनपुट है उससे कंट्रोल हो रहा है, राइट? तो ये हुआ क्या कि ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर था, ये कंट्रोल ट्रांसमीटर था, इस कंट्रोल ट्रांसमीटर ने आपकी जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर की पोजीशन है उसको चेंज करवाया, और उसके चेंज करवाने से आपके पास जो लोड है और कंट्रोल ट्रांसफार्मर जो है उनके दरमियान की जो एक वैल्यूज हैं उनके दरमियान एक डिफरेंस एग्जिस्ट करना स्टार्ट हुआ, राइट? तो उस डिफरेंस एग्जिस्ट करने की वजह से क्या हो रहा है कि अब उस डिफरेंस को, बिकॉज देयर इज अ फीडबैक लूप, तो क्या होगा उस डिफरेंस को, what will happen to the load will also start moving to the position of the control transformer, right? Until there is an error that exists, because the control transformer would follow the position of the control transmitter, it would switch to 90 degrees, right? Once it switches to 90 degrees, it would feel that the system would realize that the load is not in the same position as the control transformer. तो कंट्रोल ट्रांसफार्मर इस बात को डिटेक्ट करेगा कि ये जो कंट्रोल ट्रांसमीटर था और जो लोड जिसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे उनके दरमियान एक पोजीशन की डिफरेंस है। तो लेट्स से वो डिफरेंस क्या है, 45 डिग्रीज का था, तो उस 45 डिग्रीज को कवर करने की कोशिश कर रहा है, और वो कवर करते करते एग्जैक्टली उस पोजीशन पे आ गए जिसमें कंट्रोल ट्रांसमीटर था। तो आप देखें दोबारा सिंक्रोनाइजेशन हो गई, कंट्रोल ट्रांसमीटर, कंट्रोल ट्रांसफार्मर एंड जो लोड है जिसको हम कंट्रोल करें, तीनों की सिंक्रोनाइजेशन हुई। So this servo motor is actually acting in a way that it tries to synchronize the positions of the control transmitter and the control load, जिस चीज को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उसको, और ये जो आपका जो मैकेनिज्म है और जो चीज जिसको कंट्रोल कर रहे हैं इन दोनों चीजों को ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मेक सेंस? समझ आती है इस बात की? एनी क्वेश्चंस? यस सर ये एक बार फिगर बी जरा दोबारा से समझा दें। बी पार्ट, अच्छा मैं इसको दोबारा से टच करता हूँ। देखिए इसके अंदर जो बात कर रहे हैं हम वो क्या है कि आपके पास ये कंट्रोल ट्रांसमीटर था जो पोजीशन कंट्रोल कर रहा है इस लोड की, ठीक है? हमने भी थोड़ी देर पहले बात की कि हमें भी ऐसा हो सकता है कि आउटपुट और इनपुट की जो कमांड्स हैं वो मैच ना कर रही हैं, मतलब इनपुट की जो कमांड है वो आउटपुट पे ना आ रही है, तो उसके लिए आपको एक क्लोज लूप सिस्टम बनाना पड़ता है। तो आपने ये फीडबैक लूप रिस्पॉन्स यहाँ से जो सर्वो मोटर का जो पोजीशन थी वही इस लोड की पोजीशन होगी ना, तो आपने सर्वो मोटर की पोजीशन से फीडबैक उठाया और कंट्रोल ट्रांसफार्मर को दे दिया। अब ये क्या कर रहा है कि ये इस कंट्रोल ट्रांसमीटर और जो लोड की जो पोजीशंस हैं उनकी कंपैरिजन कर रहा है, और का कंपैरिजन एरर ना के ये सर्वो एम्पलीफायर को दे देता है, ठीक है? अब आपने देखा ये 90 पे मूव कर गया, तो ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर भी 90 पे मूव कर जाएगा। अभी जैसे जैसे 90 पे मूव करने की कोशिश करता है तो ये जो फीडबैक है ये कंपैरिजन में समझ आती है कि यार ये तो 45 पे पहुंच गया, ये क्यों नहीं 45 पे जा रहा, तो ये भी 45 के ऊपर आने की कोशिश करता है। तो ये इस एरर को कम करने की कोशिश करता है। दैट मींस जो कंट्रोल ट्रांसमीटर है वो कंट्रोल ट्रांसफार्मर की पोजीशन है, और कंट्रोल ट्रांसफार्मर में ये कंपैरिजन हो रहा है कि लोड की पोजीशन क्या वही है जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर की पोजीशन है या जो इनपुट की पोजीशन है। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री से पहुंच जाना है, इसने 90 डिग्री से पहुंचा नहीं। तो ये कंपैरिजन की वजह से, बिकॉज एरर एग्जिस्ट कर रहा है कंट्रोल ट्रांसमीटर की पोजीशन में, कंट्रोल ट्रांसफार्मर की पोजीशन में, इन कंपैरिजन विद द पोजीशन ऑफ द लोड, इस वजह से वो लोड भी उस एग्जैक्ट पोजीशन में आने की कोशिश करता है जिस पोजीशन में वो
आपने कंट्रोल ट्रांसमीटर को दिया। ठीक है, समझ आती है इस बात को? मेक सेंस? ठीक है, एन एग्जांपल ऑफ दिस इज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है, उस जो ये गियर सिस्टम जो ऑटोमेटिक होता है, तो बहुत अरसे तक ये जो व्हीकल्स थी, ऑटोमोबाइल्स थी, इनमें देयर वाज मैनुअल ट्रांसमिशन। तो आपने मैनुअल ट्रांसमिशन देखी होगी कि उसमें द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इज कि मैनुअल ट्रांसमिशन को जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हैं वो फौरी स्पीड गेन करते हैं, वेयरएज इन जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसमें आपने देखा है होगा कि अगर इफ यू प्रेस द पेडल एक्सेलरेटर जिसको हम कहते हैं, वो अगर उसको प्रेस करें तो उसको उस लेवल पे स्पीड अप करने के लिए, मतलब लेट्स से आपने 0 से 50 की पेडल को 50 की, ऑल्दो यू डोंट नो कि 50 पे कर रहे हैं कि 60 पे कर रहे हैं, वो आपका अंदाजा से चल रहा होता है काम, लेकिन कहने का मकसद ये है कि लेट्स से आपने अंदाजा लगा के 60 किलोमीटर पर आवर के ऊपर पेडल को प्रेस कर दिया, यू वुड सी कि आपके पास 4-5 सेकंड का कम से कम टाइम आता है, ये कम से कम 5-10 सेकंड का टाइम होता है जिसके बाद वो 0 से 60 किलोमीटर पर आवर पहुंचता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो इनपुट कमांड है दैट हैज चेंज, जो आउटपुट कमांड, जो आउटपुट पोजीशन है, टायर्स की जो रेवोल्यूशंस पर मिनट की स्पीड है वो नहीं है, लेकिन जब वो स्पीड वापस सेंसर से आके कंपेयर होती है तो वो उसको समझ आती है कंट्रोल ट्रांसफार्मर को कि भाई ये तो पोजीशन मैच नहीं कर रही, जो इनपुट है वो 60 है, जो आउटपुट है वो 20 है अभी तक, एरर एरर एरर, 40 का एरर, 30 का एरर, 20 का एरर, 10 का एरर, 5 का एरर, फिर 59 का एरर, 1 का एरर, मतलब 59 किलोमीटर पर आवर पे जाके 1 का एरर, फिर 59 से वो 60.5, 61, 62, इस तरह से एरर चलता रहता है। तो कोशिश वो क्या करती है कि एग्जैक्टली उस स्पीड को मैच करती है जो स्पीड आपने सेट की। समझ आती है इस बात को? कुछ रियल बात की भी, कुछ रियलाइजेशन कुछ फिजिकल चीज से भी मैच करने के आप काबिल होते हैं। समझ आती है? ऑलराइट, गुड, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारी और जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है उसमें आप गौर करेंगे कि चीजें थिंग्स टेक टाइम टू कम टू द एक्चुअल पोजीशन, राइट? अब आप कंपेयर करें इस फैन को, वो एक मैनुअल ट्रांसमिशन है, दूसरी आप इसको कंपेयर करें कि ये जो फैन की स्पीड आप बढ़ाते हैं तो फौरी तौर पे इसकी स्पीड बढ़ जाती है, बिकॉज देयर इज नो फीडबैक लूप। तो वो जो जिस आपको नहीं पता कि आपने कितनी स्पीड की, आपने अंदाजन एक स्पीड बढ़ाई है, उसने भी अंदाजन उस स्पीड हो सकता है जो आपने स्पीड जितनी बढ़ाई हो उतनी फैन में ना आ रही हो, ठीक है? तो ये क्या है? ओपन लूप सिस्टम, बट यू डोंट केयर, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है इतनी कॉस्ट भी लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है? बिकॉज अगर आप कंपेयर करें तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है उसकी कॉस्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैनुअल ट्रांसमिशन। तो हर जगह, हर इंजीनियरिंग सिस्टम में, हर टेक्नोलॉजिकल सिस्टम के अंदर वी डोंट नीड द ऑटोमेशन, ऑल्दो ऑटोमेशन अब बड़ी सस्ती हो गई है, विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सस्ती हो जाएगी, आगे मजीद सस्ती हो जाएगी ऑटोमेशन, बट इट्स नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट? क्लियर होती बात? समझ आती? क्लियर? तो आपके पास जो सर्वो मैकेनिज्म है उसके कुछ की पॉइंट्स हैं, वो क्या है कि the original error movement of the transmitter rotor was detected by the control transformer, और इसकी वजह से वो जो उसने मूवमेंट डिटेक्ट की है उसकी वजह से खुद भी मूव करना स्टार्ट कर, और बिकॉज वो खुद मूव करना स्टार्ट कर दे तो जो आउटपुट मोटर है और जो उसका जो इनपुट जो आउटपुट के ऊपर जो सर्वो मोटर है उसकी पोजीशन और जो इनपुट ट्रांसफार्मर की पोजीशन है उसके दरमियान एक एरर आ जाता है, तो उस एरर को एडजस्ट करने की, उस एरर को करेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक होगी बात? तो अब आप क्लासिफिकेशन देखें कि डीसी, एसी या पल्स ऑपरेटेड किया जा सकता है। वो क्लोज लूप सिस्टम क्या हो सकता है कि आपके पास एक जो है वो डीसी सिग्नल्स पे चलने वाला क्लोज लूप सिस्टम हो, ऑल्टरनेटिंग सिग्नल्स पे चलने वाला कंट्रोल लूप सिस्टम हो, या पल्स पे चलने वाला हो, राइट? ठीक है, समझ आ रही है इस बात को? तो एसी डीसी सिग्नल, आपको पता है कि जो डीसी मोटर्स वगैरह होती हैं, डीसी पोजीशन जो चीजें डीसी डायरेक्ट करंट पे चल रही होती हैं वो डीसी सर्वो मैकेनिज्म में आ जाएंगी, जो ऑल्टरनेटिंग करंट पे चल रही होती हैं ऑल्टरनेटिंग करंट पे आ जाएंगी, ठीक है? और पल्स मैकेनिज्म क्या है? ये पल्स मैकेनिज्म, ठीक है? ये सिंपलेस्ट पल्स मैकेनिज्म ये है, ये सिंपलेस्ट पल्स जो एक टाइम पे आए उसके बाद ना आए, ठीक है? लेकिन पल्स थोड़ी सी एक्सपैंड भी कर सकती है, इस तरह भी हो सकती है, ये पल्स थोड़ी सी
मजीद बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो हम डिजिटल सर्किट्स आगे देखेंगे। ऐसे सर्किट्स होंगे जो कि क्लॉक पे चल रहे होंगे। तो क्लॉक की एक तरह की पल्स ही है। तो क्या होता है कि पूरा जो सर्किट है, पूरा जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, वो एक पल्स पे चल रहा होता है। ठीक है, जब भी पल्स आएगी तो ऑपरेशन होगा, अदरवाइज ऑपरेशन नहीं होगा। राइट, समझ आती है इस बात को? अच्छा, the next thing that we're going to talk about is damping, right? एप्लीकेशन की हमने बात कर ली। एप्लीकेशन क्या हो सकती है? ऑटोमोबाइल में अपनी इसकी एप्लीकेशन है, इसकी डे टू डे जो डेली लाइफ अफेयर्स हैं उसके अंदर इसकी एप्लीकेशन है, कंट्रोल मैकेनिज्म की। जो बेस्ट एप्लीकेशन है वो क्या है? वो अल्लाह ताला के बनाए हुए सिस्टम इसमें नजर आती है कि आपके पास, जिसकी शायद हमें पहले शनाख्त थी ही नहीं, अभी बाद में हमें समझ आई कि ये तो ऑलरेडी जो जिसने इंजीनियर किया इंसान को, उसने सब कुछ इसमें पहले ये सारे सिस्टम फिट किए। तो आप देखें कि जो ग्लूकोज लेवल है बॉडी का, जब ग्लूकोज लेवल कम होता है बॉडी में, तो उस ग्लूकोज लेवल के कम होने से जो इंसुलिन है बॉडी में, इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन दी फैट, और जो स्टार्च स्टोर हुई होती है बॉडी के अंदर, उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। तो बॉडी में स्टार्च जो फैट एक्यूमुलेट हुआ हुआ है, यूज हुआ है, तो वो उसको यूज करना स्टार्ट कर देता है इंसुलिन। not insulin, the other glucagon उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है जब शुगर लेवल लो हो रहा होता है। ठीक है, तो बॉडी ने क्या करना होता है, वो शुगर लेवल ब्लड के अंदर वो शुगर लेवल मेंटेन करना होता है। उसको मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, वो उस जो फैटी टिश्यूज, जो फैट टिश्यूज हैं या जो स्टार्च के टिश्यूज हैं, उनको ब्रेक डाउन करके ब्लड में शामिल करना स्टार्ट करता है ग्लूकोज की फॉर्म। एट द सेम टाइम जैसे ही ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है, तो बढ़ने से क्या होता है, इंसुलिन उस जो इंक्रीज ग्लूकोज लेवल है उसको यूज करके स्टार्च बनाना शुरू कर देती है, स्टार्च या फैटी टिश्यूज बनाना शुरू कर देती है। राइट, तो होता क्या है कि बॉडी का जो ब्लड लेवल है, ब्लड है, उसके अंदर एक कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट या नियरली फेयरली एक कंट्रोलेबल रेंज के अंदर ब्लड ग्लूकोज रहती है, एक कंट्रोल से बाहर नहीं होती। ठीक है, तो वो भी क्या है, कंट्रोल किया जा रहा है बॉडी के अंदर, ऑटोमेटिकली कंट्रोल सिस्टम फिट हुआ। ठीक होगी बात, ये भी समझ आती है। तो जो डायबिटीज के शिकार होते हैं लोग, उनका यही होता है कि इंसुलिन बनना खत्म हो जाती है, तो फिर वो आर्टिफिशियल इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं ताकि एक्सेस ग्लूकोज को दे कैन कन्वर्ट इनटू they can convert to starch and fatty tissues. तो इसलिए जब बहुत सारे many diabetic people when they convert to insulin they actually start gaining weight। तो वो क्या होता है कि इंसुलिन मिलना शुरू हो जाती है, तो वो आपको वो इंसुलिन इंजेक्ट होने की वजह से ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है फैटी टिश्यूज के अंदर। ठीक है, क्लियर होती है बात? एनी क्वेश्चंस? तो कुछ बहुत सारे फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स, तो ये भी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है कि आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर सेंसर्स हैं, ग्लूकोज सेंसर्स हैं, वो फिट हुए हैं। वो सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं ग्लूकोज लेवल गिर रहा है तो ग्लूकोज बढ़ाओ भी, बढ़ाने के लिए स्टार्च को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दो ग्लूकोज। इसी तरीके से ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो उसको इंसुलिन एक्ट करना स्टार्ट कर देती है, इंसुलिन जाके उसको जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ब्लड के अंदर उसको स्टोर कराना शुरू करता है। ठीक है, समझ आती है इस बात? तो अब हम अगली चीज देखते हैं, डैम्पिंग है। डैम्पिंग क्या है? डैम्पिंग इज बेसिकली द ऑपोजिशन टू और द स्लोइंग डाउन ऑफ थिंग्स। ये किसी चीज को हम रोकने की जब कोशिश करते हैं या किसी चीज के इफेक्ट को स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं, वो डैम्पिंग है। मसलन जो शॉक अब्जॉर्बर्स हैं, आपने देखा होगा कि ये बाइक्स के अंदर, ये बाईसाइकिल्स जो लोग यूज करते हैं, बाईसाइकिल्स के अंदर जो शॉक अब्जॉर्बर होते हैं, शॉक अब्जॉर्बर हर ऑटोमोबाइल में है, लेकिन जो बाईसाइकिल या बाइक्स के अंदर उसका इफेक्ट बड़ा ज्यादा महसूस होता है। ठीक है, वो क्यों इफेक्ट ज्यादा महसूस होता है? बिकॉज उनके शॉक्स बाहर ही आपको नजर आ रहे होते हैं। तो आप देखते हैं कि जब भी आप किसी खड्डे में बाइक या बाईसाइकिल लगती है, तो वो शॉक उसका अंदर जाके वापस आता है। तो शॉक अब्जॉर्बर जो है वो डैम्पर के तौर पे काम कर रहा है। जो डैम्पर है, वो डैम्पर क्या चीज है कि वो जो डिग आया या जो कोई बम्प आया, तो उसकी वजह से वो उस जो शॉक बाइक के टायर को आया या और वो बाइक के टायर से हम पे आएगा, वो उस शॉक को कम करने के लिए वो शॉक अब्जॉर्बर लगाया है बीच में। ठीक है, तो शॉक अब्जॉर्बर एक्चुअली एक्ट्स टू dampen the effect of the shock that occurs to the bike, right, or to the bicycle, right? And because we generally drive on bumpy roads, तो इस वजह से वो शॉक अब्जॉर्बर्स खराब भी हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम।
राइट। तो डैम्पिंग का इफेक्ट क्या है कि आप किसी चीज को स्लो डाउन करने की कोशिश करें। तो लेट्स से आपने लेट्स से ये कोई एलरॉन की पोजीशन थी, ठीक है, मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ कि आपने एलरॉन की पोजीशन सेट कर दी 2 डिग्रीज, कोई फ्लैप की पोजीशन थी 2 डिग्रीज, आपने 2 डिग्रीज नॉट डिग्री सेल्सियस, फ्लैप की पोजीशन 2 डिग्रीज आपने डिफ्लेक्ट किया, तो ये फ्लैप था। ये फ्लैप पता लगा जी आपको, लेट्स से ये फ्लैप डिटेक्ट, ये फ्लैप 2.5 डिग्रीज में पहुंच गया, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि वो हायर पोजीशन पे पहुंच जाए। जब वो उस पोजीशन को क्रॉस कर जाता है, जिस पोजीशन पे उसने पहुंचना था, तो उसको कहते हैं ओवरशूट, ठीक है। ये भी टर्म आपको कहीं बीच में किताब में लिखी हुई मिलेगी कि जिसको ओवरशूट वो कह रहे हैं, ठीक है। तो जब एक्चुअल पोजीशन से जिस पोजीशन पे आपने सेट किया होता है उस पोजीशन को ये क्रॉस करके आगे चले जाता है उससे, तो उसको क्या कहते हैं ओवरशूट। तो आपने फ्लैप की पोजीशन क्या सेट की थी 2 डिग्री, मिसाल के तौर पे, ज्यादा भी हो सकती है 45 डिग्री तक जा सकता है, उससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि फिलहाल हम सिर्फ मिसाल के तौर पर देख रहे हैं किसी एलरॉन या फ्लैप या किसी कंट्रोल सरफेस की आपने पोजीशन 2 डिग्री डिफ्लेक्शन सेट की, वो 2.5 पे पहुंच गया। अब 2.5 पे पहुंचने का प्रॉब्लम क्या है कि ये ओवरशूट है, ये एक्चुअली उस पोजीशन पे नहीं पहुंचा हुआ, ये ओवरशूट कर गया, बढ़ गया है उससे। I hope it's visible to you. Alright, it's still not visible. ठीक है, तो ये उससे क्रॉस कर गया, 2.5 डिग्री का ओवरशूट आ गया। ये ओवरशूट 3.5 का भी आ सकता था, ये 4 का भी आ सकता था, मतलब ज्यादा ओवरशूट भी हो सकता था। तो इस ओवरशूट को हम कम करना चाहते हैं। अब कम करने का तरीका क्या है? इसको कम करने का तरीका है डैम्पिंग, राइट। समझ आती है इस बात की कि डैम्पिंग हमें क्यों चाहिए? Does it make sense to you? The damping, when you talk about the servo mechanism, why are you concerned about the damping effect? Right? समझ आ रही इस बात की? Any questions? Alright, the next thing is a closed loop mechanism, जिसके अंदर हम positional servo की बात करें, तो आप किस किस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? बुनियादी तौर पे आप पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी चीज की पोजीशन को, किसी एक फ्लैप की पोजीशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपने टायर की स्पीड कंट्रोल करनी है ना, जब आप ऑटोमेटिक या मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो आप उस टायर की स्पीड को कंट्रोल करें। तो स्पीड क्या है? रेट ऑफ टर्निंग या रेट ऑफ पोजीशन चेंज जो है, एक तो उस टायर की पोजीशन को कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरा ये कि उस टायर की जितनी तेजी से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक होगी बात। और तीसरी चीज क्या है कि आपके पास कोई कंप्यूटिंग सर्वो भी हो सकती है। कंप्यूटिंग सर्वो का क्या काम होगा कि वो आपके पास जो इनपुट और आउटपुट की जो एरर्स हैं उनको कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। ये क्लोज लूप सर्वो मैकेनिज्म का आपका क्या मेन काम होगा कि वो एक ऑर्डर एक्सेप्ट करे। आपने ऑर्डर दिया जी 2 डिग्री फ्लैप डिफ्लेक्ट करो, उसने 2 डिग्री पे 2.5 पे डिफ्लेक्ट कर दिया, कमांड फॉलो कर ली। कमांड फॉलो करने के बाद उसने वापस जाके कंपेयर किया कि 2.5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, तो इसको करेक्ट करना है। और करेक्ट किस तरह से होगा कि ये जो एरर आपने बनाया है इसको करेक्ट करके 2.5 से 2 पे ले आओ, ठीक है। तो करेक्टिंग क्लोज लूप सर्वो मैकेनिज्म के अंदर एक और कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए कि इट हैज टू बी एबल टू करेक्ट द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल the value of the position or the rate or whichever variable you are trying to control to the actual position or to the actual velocity or the actual value that matters to us, right? So remote position servo system नहीं हो सकता है। Remote means जिस तरह right now we are talking remotely because मैं आपके सामने तो मौजूद नहीं हूँ, मेरे सामने कह लें कोई 50 इंसान जैसी लगती हुई कुर्सियां मौजूद हैं, तो वो will not इंसान जैसी लगती हुई of course because तो कहने का मकसद मेरा ये है कि आपके पास जो इस वक्त हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन है दैट्स रिमोट मोड ऑफ ऑपरेशन। वी आर ऑपरेटिंग रिमोटली, हम डायरेक्ट वहां पे बैठ के बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है कि आप जब व्हेन वी आर ऑपरेटिंग रिमोटली, तो उस रिमोट ऑपरेशन के अंदर आपके पास हम लाइव बातें नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, इस लिहाज से ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम कम टू लाइव ऑपरेशन, तो लाइव ऑपरेशन आपका डिफरेंट होगा। इसी तरीके से जब आप किसी मोटर की, किसी फ्लैप की, किसी कंट्रोल सरफेस की पोजीशन को कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो यू बेसिकली मेनी टाइम्स यू टॉक अबाउट रिमोट कंट्रोल, राइट। तो रिमोट कंट्रोल, जिस तरह मैंने इस टेम्परेचर की एग्जांपल दी, तो क्या कर रहा था मैं इस एसी की टेम्परेचर को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। सिमिलरली मैं किसी चीज की पोजीशन को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मसलन लेट्स से फ्लैप्स, इस एसी के जो फिन्स होते हैं उसकी पोजीशन को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ रिमोट कंट्रोल के थ्रू, राइट।
तो इसी तरीके से ये रिमोट पोजीशन सर्वो सिस्टम को भी मैं काबू में ला सकता हूँ। ठीक है, फिर आपने डीसी मोटर्स देख रहे हैं आप, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स के अंदर तो आपको ये पता है कि बिकॉज यू वांट द मोटर टू कम्यूटेट, आपको कॉइल को रोटेट करवाना होता है एक ही डायरेक्शन के अंदर। इस वजह से आप क्या करते हैं, डीसी मोटर्स का ब्रश गियर मैकेनिज्म आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, जो ब्रशेस कम्यूटेटर्स के साथ रब कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका मोटर की पोजीशन है वो एक ही पोजीशन रहती है, पोजीशन चेंज नहीं होती। ठीक है, इसी तरीके से टेम्परेचर स्टेबिलिटी, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ये आ सकती हैं कि जो मेंटेनेंस ऑफ ब्रश गियर है वो आपकी ब्रश गियर असेंबली जो है पुरानी हो जाए, इस वजह से ब्रश गियर असेंबली चेंज करनी पड़ जाए आपको। ठीक है, ऑल्दो आपकी सर्वो मोटर के अंदर आपको जो जो फंक्शन है वो ठीक मिल रहा है कि 2 से 2.5 डिग्रीज का जो ओवरशूट आता है उसको करेक्ट कर लेती है वो मोटर, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेंटेनेंस के प्रॉब्लम्स की वजह से वो मजीद ओवरशूट शो करे। फिर हमने दूसरी चीज ये बात की इससे पहले भी कि जब टेम्परेचर को आपने कंट्रोल करने की बात की थी, तो हाउ वाज द टेम्परेचर दैट अपीयर्ड ऑन द आउटपुट बीइंग शोन ऑन द बीइंग कंपेयर्ड ऑन द इनपुट, कि वो दोनों इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस वर बीइंग कंपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेजेस। तो वो वोल्टेजेस की फॉर्म में ही इस तरह पोजीशन, अगर किसी चीज की फ्लैप की पोजीशन को हमने कंट्रोल करना है तो उसका जो फीडबैक आएगा सेंसर से वो एक वोल्टेज की फॉर्म में आएगा, तो उन वोल्टेजेस को कंपेयर करेंगे। एक्चुअली तो हम कंपेयर नहीं कर सकते ना कि आप ये फ्लैप इस पोजीशन पे था, किस तरह से आप कंपेयर करेंगे? तो फ्लैप की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल आपको और बनाना पड़ेगा। वो सेंसर क्या करेगा, उस फ्लैप की पोजीशन को डिटेक्ट करेगा, इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंट करेगा, दो वोल्टेजेस कंपेयर होंगी और वो एरर डिटेक्ट हो जाएगा, कितना एरर था। ठीक है जी, समझ आ रही है इस बात की? क्लियर होती है डिस्कशन सबको? तो ये एरर डिटेक्शन के भी मैकेनिज्म हमने देख लिया कि आपके पास लेट्स से आउटपुट टॉर्क है, तब आप ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप कंट्रोल, ये इंडक्टर है, इस इंडक्टर के अंदर करंट जा रहा है और इस इंडक्टर के करंट की वजह से इस मोटर की जो टर्निंग जो जो पोजीशन है वो कंट्रोल हो रही है। तो यहाँ से आपने इनपुट सिग्नल दिया, अपना इनपुट सिग्नल इस एम्पलीफायर के थ्रू होकर इस इंडक्टर तक गया, इस इंडक्टर ने इस मोटर की पोजीशन को कंट्रोल करवाया। तो इस मोटर की पोजीशन की जो एक्चुअल जो पोजीशन है वो आउटपुट पर आ गई। आउटपुट पे आने से जो आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज है उसको आपने आउटपुट वोल्टेज को ले जाके यहाँ पे दोबारा कंपेयर किया। ठीक है जी, तो ये आप देखें ये फीडबैक मैकेनिज्म है, ये इनपुट और आउटपुट जो है आपस में कंपेयर हो रही है। जब वो आपस में कंपेयर होती है तो एरर सिग्नल दोबारा जाता है इस इंडक्टर के पास और एरर सिग्नल करने की क्या कोशिश करता है कि इस एक्चुअल मोटर जो है उसको उसका जो एक्चुअल पोजीशन जिसके ऊपर आप लाना चाहते थे उसको उस पर लाने की कोशिश करता है उसको, राइट। तो ये एरर डिटेक्शन वाज इंपॉर्टेंट। एरर डिटेक्शन वही जो हमने पहले कंट्रोल ट्रांसफार्मर कंट्रोल ट्रांसमीटर की बात की थी। फिर पोजीशन फीडबैक, ये जो मोटर की पोजीशन है इसका फीडबैक जा रहा है लेकिन इट इज गोइंग बैक टू द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ अ वोल्टेज, और उस एरर रिडक्शन को भी कम करने की कोशिश की जा रही है। मतलब उस एरर को वो कोशिश करेगा कि एग्जैक्ट उस पोजीशन पे आ सके जिस पोजीशन को इनपुट ने सेट किया हुआ। ठीक होगी बात? तो ये इनपुट है, ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर है और इस कंट्रोल ट्रांसफार्मर की एक सर्वो मोटर की पोजीशन है और ये कंट्रोल ये जो पोजीशन है इस जब ये एम्पलीफायर के थ्रू सर्वो मोटर पर गई तो इसका एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इस वापस फीड किया गया इस सर्वो मोटर के थ्रू कंट्रोल ट्रांसफार्मर से इस ट्रांसमीटर की जो पोजीशन थी और इस जो सर्वो मोटर की एक्चुअली पोजीशन थी इसका कंपैरिजन किया गया। तो इसका एरर बन के दोबारा ये देखें ये कंपैरिजन बनी, ये वापस गया सिग्नल, यहाँ से इनपुट का सिग्नल आया, इस कंपैरिजन को दोबारा आपने सर्वो एम्पलीफायर में फीड किया और ये जो एरर था दोबारा सर्वो मोटर के पास गया कि भाई इस पोजीशन को करेक्ट करो, थोड़ा सा एरर आ रहा है। राइट, मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस टू एवरीवन? Any questions? All right, so what I'm going to do is that I'm going to stop for a minute and I'm going to give you some time to quickly read through these lines and see through these lines. We have covered the main idea and concept, but if there's anything that you would like to ask related to particular things in this section, please let me know. कोई चीजें ऐसी हैं जो आप बात करना चाहें जिसके ऊपर, तो आपके पास 2 मिनट हैं, आप इसको रीड कर लें और फिर मुझे बताएं if there's anything that you would like to discuss. Right, till that time I'm going to turn this to the board in order to make sure that you see and you note it down if you want to, although it's not a very complex detail, most of you already know it. All right, take a couple of minutes, go through these paragraphs and let me know if there's anything that you would like to know, that you would like to ask.
All right, any questions? जी, तो क्वेश्चन हो तो पूछिए. Okay, then let's move on to the next topic, which is servo AC induction motor. तो इस AC servo motors, right? तो हमने बात की कि आपके पास the system servo mechanism can either be direct current operated or alternating current operated, right? So one part of the DC, one part of the servo mechanism was a servo motor, right, which was controlling the position of the surface or the control surface or the the system that we were talking about, right? AC servo motor के अंदर जब हमने बात की थी तो आपके पास देखें जो टॉर्क होती है वो टॉर्क क्या चीज है? Anybody who can define torque? Anybody who can define torque? टॉर्क क्या चीज होती है? जी, The rotational motion, how quickly an object can rotate. ठीक है, रोटेशन से ताल्लुक है इसका, लेकिन टॉर्क दरअसल क्या शो करता है? किसी चीज का रोटेशनल इफेक्ट शो करता है. तो हम क्या बात कर रहे हैं कि लेट्स से अगर मैं बात करूं इसको इस तरफ करके, क्या आपके पास एक सिस्टम है, ये एक मोटर है, इस मोटर को इस तरफ टर्न करने की कोशिश की जा रही है, एक फोर्स है जो इसको इस तरफ टर्न करने की कोशिश की जा रही है, कर रही है. तो जो इसको टर्न करने के लिए जो जिसको रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स है, इसको हम टॉर्क कहते हैं. Torque is the rotational effect of force, the force that tries to turn any axis or shaft or motor to in a particular direction. Rotational effect of force is what we call as torque. ठीक है, तो अगर एक मोटर के ऊपर एक मोटर सर्कल में रोटेट करती है, गोल गोल रोटेट कर रही है, तो अगर उसके अंदर आप टॉर्क ज्यादा कर देंगे तो उसका मतलब क्या है? फोर्स ज्यादा कर. अब वो फोर्स कैन बी डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ अदर थिंग्स. फोर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा करके. मोटर्स की आपने कंस्ट्रक्शन देखी हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम ज्यादा कर दें तो फोर्स की कंस्ट्रक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, इसी तरीके से अगर आप, क्योंकि आपको याद होगा फोर्स क्या है, M3 में आप देख रहे हैं फोर्स इज ILP, राइट. तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कर दूं उससे भी फोर्स ज्यादा हो जाएगी. अगर मैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर ज्यादा कर दूं वो भी इससे फोर्स, करंट से भी फोर्स ज्यादा हो जाएगी. करंट का मतलब ये है कि मैं वोल्टेज से भी फोर्स को ज्यादा कर सकता हूं. ठीक है, अगर मैं वोल्टेज इंक्रीज कर देता हूँ रोटर की या स्टेटर की, तो उसकी वजह से भी मैं अपनी फोर्स इंक्रीज कर सकता हूँ जिस फोर्स से वो टर्न कर रही है मोटर, राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स इंक्रीज करूँ, टॉर्क इंक्रीज, अगर करंट इंक्रीज करूँ या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करूँ या इस तरह को एक लेंथ ऑफ द कंडक्टर को इंक्रीज कर दूँ जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की कटिंग हो रही है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जिसके अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है, तो तीनों इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि मेरे पास फोर्स बढ़ जाएगी, टर्निंग फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी. And because the force increases, the rotational effect of that force will also increase. तो आप देखें ये टॉर्क जो है ये इंक्रीज करता चला जाता है. ठीक है, तो जैसे जैसे टॉर्क इंक्रीज कर रहा है, let's look at this part of the graph. Look at this part of the graph. Right? तो आप ये देखें कि आपके पास जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज करती है, ये इस पॉइंट से देखना शुरू करें, जैसे जैसे टॉर्क इंक्रीज करती है आपके पास जो स्पीड है उस मोटर की वो भी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है, राइट. सिमिलरली इस पॉइंट पे जाके इस पॉइंट पे जैसे ही आप टॉर्क को कम करने की कोशिश करते हैं तो स्पीड एकदम वापस आ जाती है, इस तरह से कम हो जाती है. इनफैक्ट कम नहीं हो जाती, टॉर्क को जिस तरह से आप रिमूव करते हैं तो वो स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड पे रिटर्न कर जाती है. ठीक है, तो ये क्या है, इसने इसकी बिकॉज आपने टॉर्क को इंक्रीज किया के एकदम जीरो पे लेकर आए हैं, तो वो स्पीड अपनी मोमेंटम को लूज नहीं किया उस मोटर ने. ठीक है, तो वो स्पीड को एक पर्टिकुलर स्पीड को वो मेंटेन कर लेती है. इसी तरीके से आप देखें जब आप रिवर्स टॉर्क, जब ये आप कह लें कि इसी तरीके से जब आप टॉर्क को कम करते हैं, ये टॉर्क आप कम कर रहे हैं, ठीक है, टॉर्क को कम करने से क्या होता है, स्पीड आपकी रिवर्स हो जाती है. ठीक होगी बात. अब आप जस्ट लुक एट दिस पार्ट, ये आपके पास नेगेटिव टॉर्क है, ये पॉजिटिव स्पीड है, राइट. ये पॉजिटिव स्पीड के ऊपर जब आप नेगेटिव टॉर्क देते हैं, दिस वाज पॉजिटिव स्पीड बट द टॉर्क वाज नेगेटिव,
तो इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव स्पीड नेगेटिव टॉर्क अप्लाई, इसका मतलब क्या, नेगेटिव टॉर्क का मतलब क्या है कि पहले मोटर इस तरफ रोटेट कर रही थी, अब इस तरफ रोटेट करते करते आपने टॉर्क जीरो कर दिया तो मोटर इसी तरह रोटेट कर रही, लेकिन आपने टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो अब होगा क्या कि पहले मोटर इस तरह रोटेट करती करती स्पीड इसकी कम होके स्पीड जीरो होगी, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। सो यू सी दिस इज व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली। ये आपके पास ये स्पीड थी, इस स्पीड के ऊपर जब आपने नेगेटिव टॉर्क अप्लाई किया तो ये देखिए स्पीड इसकी पहले जीरो होती है, फिर स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर, ये मोटर जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं, और उस पर भी जाके जब आप टॉर्क जीरो करते हैं इसका तो ये जीरो पे आ जाती है। ठीक है, जीरो पे नहीं आई थी, एक पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन कर ली थी, बिकॉज वो उसने मोमेंटम गेन कर लिया है, जो आपने फोर्स के थ्रू मोमेंटम उसको दिया, वो उसने मोमेंटम को रोटेट करती चली जा रही है। ठीक है, और इसी तरीके से इस पार्ट ऑफ ग्राफ को भी देखें कि आपने टॉर्क पॉजिटिव रखा हुआ है लेकिन स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये स्पीड आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में थी लेकिन टॉर्क आपने पॉजिटिव दे दिया, तो अब ये क्या होगा कि पहले ये इसको रोकेगा उस डायरेक्शन में मूव करने से, फिर इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करवाएगा। तो इसका ओवरऑल जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ये चीज। ठीक है, इस बात की समझ आ रही है? Does this make sense to everyone? जी, मेक सेंस? क्लियर होती है बात कि एक मोटर पहले इस तरह से रोटेट कर रही थी, इस तरह से रोटेट करके आपने टॉर्क किसी डायरेक्शन में दिया तो इस तरह से रोटेट कर रही थी, जितना ज्यादा आप टॉर्क बढ़ाते चले जाते हैं उतना ज्यादा उस डायरेक्शन में तेजी से मूव करती है। अब आपने क्या किया, एक स्पीड पे ले जाके उसको टॉर्क पे मूव कर दी, अब वो रोटेट करी जा रही है एक स्पीड के साथ, लेकिन अब आपने क्या किया, टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में दे दी है। अब क्या होगा, ये मोटर मूव कर रही है आहिस्ता 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 मूव करते करते ये जीरो पे आ जाएगी, जीरो पे आएगी, जीरो पे आने के बाद इसको टॉर्क आपने रिवर्स दिया, अब इस तरह से टॉर्क दिया तो इस तरह से मूव करना स्टार्ट करते हैं। राइट, मेक सेंस? समझ आती है इस बात की? एनी क्वेश्चंस? तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि इवेंचुअली जो मोटर की पोजीशन है उसको, मोटर की स्पीड को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं एसी सर्वो मोटर से। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं कि हम मटेरियल्स या कंस्ट्रक्शन को इस तरह से चूज करें कि आपके पास नेगेटिव टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक आए, कि मतलब आप इस टॉर्क को इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन मोटर की जो स्पीड है वो मतलब आपके पास जो टॉर्क इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से, टॉर्क इंक्रीज होने की वजह से मोटर की स्पीड की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट आए। ठीक है जी, तो आप ये देखें इसका ग्राफ जो था ये पॉजिटिव स्लोप इस तरह से आती थी, इफ यू कैन सी माय कर्सर you can see that this graph was with a positive slope, but this graph was with a negative slope. इसी तरह के ये दो ग्राफ्स के ऊपर बना के एक ग्राफ ये आया, एक ग्राफ ये आया, एक रिजल्टेंट ग्राफ इसका ये आ जाएगा, दोनों ग्राफ्स का जो इफेक्ट होगा इस तरह से आ जाएगा, और इसका इफेक्ट जो है ऑपोजिट है। इसका इफेक्ट देखें, इस तरह पॉजिटिव था, इसका इफेक्ट नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि आप टॉर्क नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं लेकिन जो स्पीड आपकी वो नेगेटिव डायरेक्शन के, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर बढ़ रही है। ऑपोजिट हो गया काम कि टॉर्क आप नेगेटिव रख रहे हैं तो स्पीड आपकी पॉजिटिव है, और टॉर्क पॉजिटिव है तो स्पीड आपकी नेगेटिव है, तो आपकी जो जो वो है कंट्रोल है वो ऑपोजिट चल रहा है। ठीक है, जिस तरह बच्चों को कहते हैं कि बच्चों को अगर आप कोई चीज मना करें तो वो चीज जरूर करते हैं। ठीक है, समझ आती है इस बात को? तो जिस तरह मैं आपको रूटीन में कहता हूं कि आपने क्लास मिस नहीं करनी और आप क्लास फिर मिस करते भी हैं, that is with the supposition that you are still kids. मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप अभी तक बच्चे ही हैं। क्या ऐसा है? Give me a yes or no if you think you are still kids. All right, I have a mixed vote, but the majority thinks that they are still kids. It's good. One should always be a bit childish. All right, thank you very much. That's all from my side today. I have a small thing for you to do, but in fact, we'll discuss it in the next class. So, how much is left for today? आज हमने construction कर ली है. All right, so we have around 30 to 40 pages to go and a month to spend on this. So we will go. Okay, we will move in a calm fashion. We don't need to speed up. So that's all from my side today. Thank you very much. Is there any question?
All right then. Thank you very much. Allah Hafiz.